Okay. So in today's session, we will cover about the cost optimization and then monitoring steps. So there are multiple things involved in both cases, monitoring and your cost optimization. So we can go one by one. First, we can go with the cost optimization part, then followed by the monitoring one. Okay. Okay. If I open the dashboard, for the cost optimization, the monitoring steps, monitoring, when I say the monitoring, for now, it's a cost monitoring. Okay. So company depend on the company to company, the process, what they follows. So based on that, it differed. Okay, the process, because some company might purchase any third party integration tools to monitor the multiple accounts. Okay, if you look at the small industry, they might have a 3 4 account or maybe single account of the AWS, right? Because they don't want to go with the multi management and other things because it's a headache, na? So they can use single AWS account with for your dev environment, test, QA or production maybe, right? I mean this kind of environment they might maintain in single AWS account. But when we talk about the enterprise industry, so they have a governance and other compliance things. So they might use different AWS accounts. One for your dev environment, another for your test, QA, production, like this. They don't want to mix each other. Okay. Now managing this entire thing, as we know, as an individual user, we can simply go to our billing and dashboards and we can check the cost. Okay. But when we talk about the 100 accounts or more, maybe more than that, 100 to 200 account for an enterprise organization. So for that, they might use any third party tools or any other integrations where, because in the market, there are multiple tools available for the license version. So in that, they can just simply add account or whatever the process they follow, just to add the billing dashboards. So whatever the data coming in the billing dashboard, they will fetch there. So they have a different strategies. Like let's say you have a different verticals or tracks in your projects. For example, there is one body company है, I mean organization. They have multiple tracks ना, payments का, travel and hospitality, और भी कुछ e-commerce प्लेटफॉर्म का हो सकता है, राइट? फिनटेक. अभी let's say they have whenever you create any resources, for example EKS cluster, S3 bucket, EC2, load balancer, so we need to provide the proper tagging. So we already cover, right, how to tag and like name equal to your server name. So you can follow the naming conventions like your vertical name hyphen then your environment name and something like that. So when you fetch the dashboard utilization report from the dashboards, either you can use tag base or any other filtration, right? So that will help out to filter the particular account details कि travel and hospitality में कितना खर्चा आ रहा है, payments या fintech या e-commerce में, right? So those stuffs will help to reduce the cost अगर कुछ unnecessary use हो रहा है तो, for that way. So as an individual user, we can simply go to the dashboards and we can just check last few month history, service wise, how much service utilizing, how much, like that, all the details, what are the traffic consumption and other things. So we can easily get those information. Okay. But when we are managing the enterprise one, so we have the main concern there. So definitely when we are working in the enterprise organization or maybe some of the projects, outsourcing projects, we don't need to worry about the costing part.
right? Ki how much costings are there, how to save it, and other things, and who will pay the bill, वगैरह वगैरह. If you are working small industry, maybe we are taking care of that complete process. But when we have a structured organization, body company, so there are a separate uh, team for that. Okay, FinOps, for example, you can say. So what will they do? Based on my experience in multiple projects, I will not take the name, but they have a process. Let's say you have the requirement to set up something, for example, dev environment. Obviously, when we are talking about dev, in future, some after 1 or 2 3 months, we need to release this feature onto the production environment, right? So we need to provide the architecture details, use case, security wise, how is compliance, and other details. So you need to give all the use case detail and present to the FinOps team. Okay, we have this architecture. There is no security exposes, no data leaks, right? And these are the requirements and valid reason to use this infrastructure. So they will analyze from the FinOps team, and they will provide you the budget. Like for all three environments, for example, dev, test, production. Maybe you can say $500 billing they will provide you per month, for example, right? If that billing is get cross, like 600 हो गया या sometimes 1000 चला गया, so we need to justify it, क्यों चला गया, right? You need to showcase all the things, and once they are satisfied with all the clause components जो भी आप explain कर रहे हो, then they will approve your request and you will get your account, AWS account created. अभी ये बड़े लेवल पे किस तरह से बनता है, आई एम नॉट अवेयर अबाउट एज ऑफ नाउ. अगर फ्यूचर में अगर अवेयर हो जाता हूँ, तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो दैट इन्फॉर्मेशन, आइदर वाया चैनल वीडियोस और समथिंग लाइक दैट. ओके, क्योंकि वो बड़े लेवल पे उनका एक अलग प्रोसेस होता है, जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं ना, मे बी थोड़ा सा अलग होगा एज अ बड़ी कंपनी के लिए, राइट? दे हैव टू प्रोवाइड विद द इंडस्ट्री और डिटेल्स एंड समथिंग लाइक दैट. सो अकाउंट क्रिएट हो जाता है, देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट, बट यू हैव टू प्रोवाइड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड you will get the budget limitation for your account. अभी लिमिटेशन है, दैट डजंट मीन कि आप सर्विस यूज नहीं कर सकते. लेट्स से मान लो उन्होंने $500 का बजट आपको दे दिया पर मंथ का, राइट? इफ इट क्रॉस, सो इट्स नॉट लाइक कि सर्विस आपकी शट डाउन हो जाएगी या डिलीट हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट, बट आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि अगर वाइट क्रॉस द बिल, राइट? बिकॉज इट अल्टीमेटली देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनॉप्स का. सो दे विल लुक एट योर एनी यूज केसेस, कुछ ओवर प्रोविजन हो गया है क्या, राइट? अभी इन्होंने थोड़ा डैशबोर्ड ऐड किया है, इफ मे बी यू माइट ऑब्जर्व समथिंग. इफ आई विजिट EC2 सेक्शन, आपको वहां पे दिखता है एक्चुअली. आई एम नॉट श्योर कितने लोगों ने ध्यान दिया है. ये डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि कब फीचर रोल आउट हुआ, बट है. और नाउ आई जस्ट स्टॉप द सर्वर, सो मे बी ये तो विजिबल है कि नहीं, बट लेट मी चेक. फॉर एग्जाम्पल इफ आई चेक दिस जेनकिन सर्वर ना, ये नीचे यहाँ पे आएगा कहीं तो. ओके, मे बी सर्वर स्टॉप है, सो दैट इज द रीजन दैट डेटा इज नॉट फेचिंग. बट यहाँ पे ना आता है वो अंडर प्रोविजन या ओवर प्रोविजन बेस्ड ऑन दिस यूटिलाइजेशन. समवेयर इट इज. ओके, ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखते हैं, या फिर आपका जब भी सर्वर स्टार्ट होगा ना, तो यहाँ पे देख लेना नीचे कहीं तो ऑप्शन रहता है. सो अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो ट्रैकिंग योर सिस्टम. So these are the things for how they works. But as a our responsibility, we should also consider the architecture properly, because when we think about the architecture designing and implementation, as architecture point of view, we need to consider all these parameters: operation excellence, security, reliability, performance,
cost optimization and sustainability. Okay, so I will share this link with you. You can just go each sections. You might get somewhere in the questions like what are the framework pillar by the AWS. So it's basically about, if I summarize in short, so your system should be high available. It should not go down, right? If something goes wrong with any particular system, maybe if you are using EKS cluster, so if one pod or something application down, so it will start from the another system or another pod, like the HPA वगैरह auto scaling का. If you are talking about the EC2 section, so we need to set our design by auto configuring the auto scaling. If something goes wrong with single server, right, so at least next server can be available. Auto scaling हो गया तुम्हारा, लोड बैलेंसर के बिहाइंड दो सर्वर मिनिमम रखना, लाइक दैट फॉर द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट. नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेव टेस्ट वगैरह. डेव एक बार स्टॉप होगा तो भी कोई उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रोडक्शन डाउन हो जाना इट्स वेरी बिग चैलेंज. आई मीन लॉस है फाइनेंशियली यानी बिजनेस ट्रस्ट. ओके, सो फॉर दैट वी नीड टू टेक केयर अबाउट इट, फेलियर वगैरह. Security wise, we should not unnecessary open the SSH port, database port, like that other things. तो if someone try to hack your account or something, password वगैरह ले लिया and you आपका port open है, तो it will be very mess up, right? He can destroy your entire environment. Performance should be there, like let's say your actual application requirement is 8 GB है and you are provisioning 2 GB 4 GB, so it should not work, right? It will not work basically. So वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा when you are designing something. Cost optimization, which we are talking about in this session, so that also matters कि अननेसेसरी ओवर प्रोविजन नहीं होना चाहिए कोई रिसोर्सेस जो यूटिलाइज नहीं है उसको आप रनिंग में है अकाउंट में, सो दैट डजंट मेक एनी सेंस एज अ आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस क्लाउड इंजीनियर मैनेजमेंट. ओके, now what things we need to take care and how we can set up this. So there are multiple ways. First thing on the infra wise, I think I somewhere now I just written in the detail as well. If I try to fetch, let me check for 1 minute, so otherwise we can proceed. शायद मैंने कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया है. अभी इसमें से ना कहीं तो कहीं कौन से तो एक डे में होगा वो डिटेल्स. माइग्रेशन का भी इसमें दिया है मैंने, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट रीड अबाउट दिस. ये बहुत पहले डेवऑप्स कट्टा के एज ए पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव 5 दिन का फ्री सेशन लिया था, सो दैट आल्सो हेल्पफुल फॉर यू. माइग्रेशन का पूरा डिटेल्स इसमें दिया है, मतलब एग्जैक्ट स्टेप नहीं है बाकी टेक्निकली, बट एज अ फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू ना कि हाउ वी कैन माइग्रेट, माइग्रेशन स्ट्रेटजीज क्या है एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द माइग्रेशन, वो पूरा डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया है. कॉस्टिंग का भी समवेयर होगा, मैंने वो भी कवर किया था आई गेस.
Let me check. रिज्यूम प्रिपरेशन का दिया है इसमें। कॉस्टिंग का आई गेस नहीं है। कॉस्टिंग का नहीं है, एनीवेज। एज अ बेस्ट प्रैक्टिस व्हेन वी डिजाइन समथिंग ना, वी नीड टू क्लियरली अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स। उसी पे सब कुछ खेल चलता है। अगर रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो अगेन रिवर्क आपको करना पड़ेगा। ओके, जस्ट गेट द रिक्वायरमेंट क्लियर and then you will work it. Okay, otherwise it will mess up with your setup and other things. Something you set up already with the lots of efforts and someone said not by lead or something, ये गलत हो गया है, right? It will again a big rework, because for example networking side, if you set up the entire cluster and VPC, बाद में someone told you कि ये VPC का structure गलत हो गया, so डायरेक्टली आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू डिस्ट्रॉय द VPC, देन अगेन अगर उस VPC पे रिसोर्स ऑलरेडी डिप्लॉयड है, EKS क्लस्टर, वो भी आपको रिमूव करना पड़ेगा, राइट? सो दिस विल एंड अप योर efforts. So just make sure कि requirement is clear. Storage, always remember AWS is like pricing model is pay as you go. Whatever you use, you will get the bill. Okay, either data transfer, either your service, compute, memory वगैरह सब कुछ जो भी यूज करोगे आप नेटवर्क साइड पे भी, राइट? सो थिंग्स प्रॉपरली, देन ऑटो स्केलिंग का पार्ट, नॉन फ्रॉड इन्वायरमेंट, रिटेंशन। इसका रिटेंशन, बैकअप। S3 bucket, archival और expiry। So there are multiple things storage wise, and the major one is which we called right sizing technically. Okay, so first thing तो यही आता है right sizing, कि whenever you are creating any cluster like either EKS cluster with the node group जो हमने last time T3 medium का देखा था, right? If you remember, and if you are talking about the EC2 instance, so make sure you are taking right instance type. Okay, instance types you can change anytime, no issues. I mean, definitely you have to stop for while, जो भी उसको टाइम लेगा, few seconds और एक आधा मिनट वगैरह, but stop, change the instance type and start it. So this is the normal process. But if you are clear about the requirement and you know we required only 4 GB RAM server, 2 core, then why you unnecessary spin up 8 GB का server, 4 core? You are unnecessary mess up, right? The cost. So obviously cost उतना ज्यादा आएगा उसका. You can always bet no increase it. Let's say you are launch with this and you are saying कि genuinely utilization and the overload, getting overload. Okay, so then you can take the proper action to upgrade it, right? Only the limitation is storage part. As I said earlier, you can always increase storage size. Let's say you have 8 GB default, you want to increase because of the data grown, maybe 15 GB something, you can always do that. Okay, but you launch with 80 GB or 100 GB, right?
एंड यू रियलाइज योर मिस्टेक कि हमने ज़्यादा अननेसेसरी बड़ा स्पेस ले लिया, you cannot reduce it. Okay, it's not possible in the AWS environment. So make sure कि you create with the right strategy. कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिनिमम 8 GB का ले लो, बाद में अगर जरूरत पड़े तो उसको इंक्रीज कर लो। अगर वो सिस्टम या टेक्नोलॉजी बोल रही है कि मिनिमम इतना ही चाहिए, उसके अगर आप नीचे कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो आपको एरर दे रहा है, सो देन यू कैन, इट्स फाइन, जो भी मिनिमम है वो दे देना। ओके, बट अननेसेसरी 100 GB का स्टोरेज स्पिन अप करना, 80 GB का करना, इट्स नॉट नो मेकिंग एनी सेंस, राइट? यू आर जस्ट वेस्टिंग योर रिसोर्सेस कॉस्ट, 70 GB का अननेसेसरी। सेम थिंग फॉर ऑटो स्केलिंग पार्ट। ओके, अभी समटाइम्स क्या होता है कि लेट्स से यू हैव वन लोड बैलेंसर एंड इफ यू आर थिंकिंग कि आज ट्रैफिक इंक्रीज होने वाला है, राइट? सो यू अननेसेसरी स्पिन अप मल्टीपल सर्वर्स, मे बी 10 15 समथिंग जो भी है, या 5 वगैरह। ओके, इसमें क्या होगा, आप अननेसेसरी जो भी कॉस्ट रनिंग होगी, लेट्स से यू आर रनिंग विथ मिनिमम 2 सर्वर, आप अननेसेसरी 2 सर्वर का कॉस्ट आप पे कर रहे हो, राइट? अगर यही चीज आप ऑटो स्केलिंग में ऐड कर दो विद द 60% या 65% CPU थ्रेशोल्ड, अगर इससे बढ़ा जाता है यूटिलाइजेशन, सो इंक्रीज, आई मीन ऐड वन मोर नोड, EC2 इंस्टेंस। डेफिनेटली वो थोड़ा टाइम लेगा, आई मीन कुछ 2 4 मिनट, बट इट विल ऐड योर एक्स्ट्रा सर्वर्स टू हैंडल द ह्यूज रिक्वेस्ट जो भी आ रहा है आपका सर्वर पे। ठीक है, अगेन इफ इट रिड्यूस 60%, आई मीन जो भी फॉर्मूला आप लिखते हो वहाँ पे मिनिमम 50% के नीचे अगर CPU वगैरह आता है तो रिड्यूस द नोड काउंट। वो 2 से 3 हो गया था इंक्रीज स्केलिंग के टाइम पे, बाद में वो कम हो जाएगा। ओके, स्केल इन, स्केल आउट, these are the two technical words we use while discussion. Can anyone let me the explain meaning of this? स्केल इन में क्या होता है, स्केल आउट में क्या होता है? स्केल इन, स्केल आउट, these are the auto scaling word. नाम से तो लगा सकते हो ना क्या है? कैन एनीवन ट्राई? स्केल इन स्केल आउट क्या होता है? इन म्हणजे इन्स्टन्सेस मध्ये EC2 वाढत असलं जसं तेच होत असते स्केल स्केल आउट. स्केल इन म्हणजे साईट वरती जेव्हा लोड येतो त्यावेळेस ते ऑटोमॅटिक स्केल आउट होणार आणि स्केल इन मध्ये अगेन ते रिड्यूस होणार. यस. So sometimes we confuse by the word कि scale in मतलब it will add servers and scale out मतलब it will reduce, but scale in जो भी आपका ये scale है, let's say 1 server, for example 2 server, scale out हुआ मतलब CPU यूटिलाइजेशन लोड हुआ मतलब स्केल आउट हुआ मतलब बढ़ गया, राइट? उसके बाद लोड रिड्यूस हो गया, देन इट विल इन, लाइक ये रिमूव हो जाएगा वहां पे, एंड जो मिनिमम आपका 2 कॉन्फ़िगर है, क्योंकि द वहां पे रहता है मिनिमम मैक्स डिजायर। एक मिनट, हाँ. Why I'm just asking this question, because this will helpful in the auto scaling group setup for EKS cluster.
ठीक है, मिनिमम वन, आई मीन मिनिमम डिजायर मैक्स. नाउ कैन एनीवन ट्राई टू एक्सप्लेन कि क्या है मिनिमम डिजायर्ड मैक्स? आरती, धनंजय, विक्रांत, दशरथ. मिनिमम, मैक्स and desired. हॅलो. Yes, yes. हा सर, इकडे बेसिकली मिनिमम मिनिमम लिहिलं ते म्हणजे तेवढे पाहिजे. जसं एक्झाम्पल मला एक काही सेटअप करायचं आहे, म्हणजे मिनिमम 2 सर्व्हर्स पाहिजेत. ओके. अँड डिझायर Hmm. डिझायर म्हणजे तेवढं एक टार्गेट. एक्झाम्पल मला म्हणजे आता 4 सर्व्हर रनिंग पाहिजेत, ते माझं डिझायर असेल. आणि मॅक्सिमम म्हणजे अराउंड 10 सर्व्हर्स वगैरे. आता मी एक यूज केस सांगतो, तर मला सांगा तुम्ही कसं डिफाईन करणार. यूज केस असा आहे, सो वी वॉन्ट टू रन मिनिमम 2 server as a production system and it will scale out to till 5 node. 5 is instance, I mean is it instance. So what would be the value of min, desire and max? Anyone can try. Minimum 2 rahil, yes or wrong? You can suggest me, I will not write anything. मिनिमम 2, मैक्स 5, डिजायर 432 ऐसा. है ऐसे कैसे? मिनिमम 2 रहा. ठीक है, चलो मैक्सिमम 5 max. रहेगा because we have given हाँ. this value. मिनिमम एंड डिजायर्ड, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स गेट कंफ्यूज कि क्या आना चाहिए और व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दोज. यू कैन गेस कि क्या रहना चाहिए. चैट जीपीटी कर लो साइड बाय साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं. यू हैव द डिझायर ऑप्शंस. 5. सॉरी, डिजायर 5. हाँ. 2 मिनट आप ले लीजिए, एक बार चैट जीपीटी करके पूछ लीजिए कि क्या रहता है. Minimum will be 2. सॉरी, आवाज नहीं येत. Minimum will be 2 ओके. and desired also can be 2 or we can give it 3 also, but it will be 2 only for current situation. इट विल बी 1 or 2. 2, 2. We can give Okay. 1 or 2. Desired is basically that
like what currently in current right situation, how many instances should be running, that is desired. तो 1 किया तो कितना रहेगा? One will be currently running asset. तो मैंने यूज केस क्या बताया? So you said that 2 you should be running, right? That is why I said that तो currently आप we will be having desired 2. एनी अदर्स? But desire should be more than minimum, na? Because your minimum is minimum. So you can say, Miss, I want to currently running 3, okay. But minimum is a 2, is it okay? But I want to currently running 3. So you can mention 3 or you can mention 2 also for minimum and design. मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ. सो ये क्या होता है, ठीक है, आपने चैट जीपीटी किया ही होगा. सो when we configure the auto scaling na based on your CPU utilization, network bandwidth utilization and memory वगैरह, ठीक है, there are multiple parameters available. Mostly we configured on the CPU utilization. For example, you configure the CPU utilization, add servers if CPU utilization cross 60%. so वो क्या करेगा, 1 ऐड करेगा, ठीक है, जो आपका बाय डिफॉल्ट 2 चल रहा है उसमें 1 ऐड कर देगा. if CPU reduce, ओके, लेस देन 60%, जो भी कॉन्फ़िगर किया है आपने रिडक्शन का, सो क्या करेगा, फिर से वो एक सर्वर डिलीट कर देगा, ये रखेगा. ओके, बट समवेयर एट द टाइम ऑफ काइंड ये ऐसे भी आता है सिचुएशन कि 0 नहीं होना चाहिए वो सर्वर जब रिड्यूस डिलीट होते जाता है. तो 60% लोड कम हुआ तो उसने एक कम कर दिया, और लोड कम हुआ तो और एक कम कर दिया. ऐसे नहीं होना चाहिए. जस्ट टू अवॉइड दोज थिंग्स, by default use case we have minimum 2. So either you can configure like this. Let me यहाँ से remove करने दो मुझे. ओके, आप इस तरह से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ये जो अभी दिख रहा है आपको, ठीक है, मिनिमम 2, डिजायर 12, मैक्स 5. मैक्स 5 तो वी आर क्लियर. डिजायर 2 मतलब इतना मिनिमम, इतना डिजायर्ड रन होना चाहिए जो हमारा एक्सपेक्टेड है, टू EC2 इंस्टेंस रन होना चाहिए. मिनिमम 2 क्या, अगर ये दोनों भी कॉन्फ़िगर कर दिया आपने, या सेकंड वे ऐसे भी है, मिनिमम आप लेट्स से आपने एक कॉन्फ़िगर किया, राइट, डिजायर आपने कॉन्फ़िगर किया 2, मैक्स 5. अब इसमें फर्क क्या है, राइट. सो जब ऑटो स्केलिंग स्केल इन होता है, सो इट विल नॉट गो बियॉन्ड 1. मतलब वो आज 0 नहीं होगा. 0 होगा तो क्या होगा, आपका सर्वर पूरा ही रिमूव कर देगा ऑटो स्केलिंग, फिर आपका पूरा सर्वर डाउन हो जाएगा. तो वो 1 के नीचे कभी भी नहीं आएगा व्हेन इट हैपेंस ऑटो स्केल इन. ओके, दैट इज द कंडीशन ऑफ दिस मिनिमम. अभी यूज केस अपना अपना क्या है, मिनिमम आई मीन रन होना चाहिए 2 सर्वर्स, मैक्सिमम 5 स्केल आउट हो, ठीक है, वो जो हमने कॉन्फ़िगर किया है. अभी एक ही इसमें डिफरेंस ये है, वो एक सर्वर के नीचे नहीं आएगा. इसको आप 2 भी रखते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब वो 2 से नीचे नहीं आने देगा उसको. डिजायर्ड इज योर इम्पोर्टेंट कि आपको कितना चाहिए, ठीक है. मिनिमम 1, ये जो जस्ट टू अवॉइड द 0 केस. आप ये प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो व्हेन यू कॉन्फ़िगर सच थिंग्स. ओके, या फिर मुझे जब अपन ये करेंगे ना टुमारो फॉर द टेराफॉर्म से, तो उसमें मुझे जस्ट रिमाइंड मी, मैं वहां से आपको दिखा देता हूँ. वहां पे ऑटो स्केलिंग में सेटिंग्स होता है, मिनिमम, डिजायर्ड एंड मैक्स. मिनिमम मान लो आपने 1 किया एंड डिजायर 2, तो आपका रन कितना होगा, सर्वर 2 रन होगा एट ए टाइम. 1 किया मतलब जब स्केल इन ट्रिगर होगा तो वो 1 के नीचे नहीं आएगा, मतलब डिलीट नहीं होगा, वो उसका कंडीशन मीनिंग है. उसको आपने दो दो भी ऐसे कॉन्फ़िगर करके रन किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका 2 ही रन होने वाला है, क्योंकि आपने डिजायर ही 2 मेंशन किया है. आपने डिजायर ही अगर कम कर दिया, फॉर एग्जांपल 2, सॉरी 2 से 1 कर दिया, एंड मिनिमम आपका 2 है, तो वो वहां पे ना आपको एरर दे देगा, मिनिमम इट शुड बी इक्वल टू डिजायर 1, ऐसे कुछ आपने अगर कॉन्फ़िगर किया होगा इसका पहले, तो यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग. और जो आपको एटलीस्ट रन करना है 2, तो आप दोनों में भी 2 2 कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर मिनिमम आपने 1 भी रखा, प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं है,
वो जीरो नहीं बनने देगा उसको स्केलिंग में. Just remind me tomorrow. I will show you the practically. Okay. So these are the things for this unnecessary extra server क्यों run करें हम. So we can configure the auto scaling part in the EKS cluster. You can use either Carpenter or your cluster autoscaler service feature for the node level scaling, and for the pod level you can configure HPA, हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटोस्केलर, जो हमें डिप्लॉयमेंट के टाइम पे देखना है. ठीक है, अभी नहीं देखना है. मैंने जस्ट आपको लास्ट टाइम जस्ट क्लस्टर सेटअप दिखाया था, बट व्हेन वी डू द टेराफॉर्म विद द जेनकिंस वगैरह ना, तो आई विल शो यू इन दैट केस क्लस्टर ऑटोस्केलर किस तरह से होता है नोड लेवल स्केलिंग पे एंड योर पॉड लेवल पे भी. ठीक है. दूसरा है, मे बी आपको राइटिंग अंडरस्टैंड नहीं हो रहा होगा, बट इट इज लाइक योर नॉन prod scheduler. ठीक है. Let's say you are running few server on the dev environment, 2-3 server जो भी है, test and QA, final year production, or maybe you are running single cluster or EC2 instance. Okay, just to unnecessarily avoid the cost, let's say your normally office hours क्या रहता है अपना, 9 AM, 6 PM या 7 PM, या 9 से 10 भी हो सकता है. ठीक है. सो इसके पहले, आई मीन आफ्टर दिस टाइमिंग, व्हाट, after 7 PM or something, or maybe you can set morning time 8 AM or 9 AM जो भी, and evening का 10 PM पकड़ के चलो, in case some developer want to extend their work for any urgent delivery or some कुछ हो सकता है, right? So after that, let's say out of 24 hours, if you cut down 12 hours utilization, so you are saving yourself 50%, right? एक दिन में 24 आवर्स रहते हैं, राइट? उसमें से आप नाइट का जो भी पूरा टाइमिंग है वो पूरा आप शट डाउन कर रहे हो. प्रोडक्शन छोड़ के यू शुड नॉट टच प्रोडक्शन फॉर दिस एक्टिविटी. ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट दीज इन्वायरमेंट्स, और नॉन प्रोडक्शन जो भी आप और एक्स्ट्रा है अगर है तो, डेव क्यूए टेस्ट स्टेज वगैरह जो भी है. ठीक है. यू कैन मेक इट शट डाउन. अभी हाउ यू कैन शट डाउन दिस? सो आइदर यू कैन यूज लैम्बडा फंक्शन और एनी अदर स्क्रिप्ट, और मैनुअली अगर कुछ छोटा सेटअप है, कुछ लोग करते हैं, बट इट्स मैनुअली आई एम नॉट सजेस्टेड, एंड नो वन सजेस्ट फॉर दिस मैनुअल एफर्ट्स. ओके, it's not possible, like it's a very hectic job and it's not suitable in today's DevOps or and the AI era, right? So we should think about the automation. So either you can use Lambda function by the tag. I personally configured in last few projects to shut down the EKS cluster for the lower environment. EKS रात में 10 बजे स्टॉप हो जाता है, मॉर्निंग में 9 समथिंग स्टार्ट हो जाता है, एंड वीकेंड, आई मीन सैटरडे संडे टोटली ऑफ. कोई काम ही नहीं करेगा तो ऑन क्यों करना है? तो इस तरह से यू विल सेव मैसिव कॉस्ट. आप पर डे का 50% ऑलरेडी बचा रहे हो, राइट? एंड वीकेंड का भी आपका बच रहा है सैटरडे संडे का. सैटरडे संडे मतलब आपका एक महीने का कितना हो गया, 10 दिन 8 दिन, उतना आप सेव कर रहे हो. सो दिस इज द स्ट्रेटजीज यू कैन यूटिलाइज यूज एंड इम्प्लीमेंट. सर ये किस अभी क्लस्टर, हेलो, हाँ, यस, ये बोलो. किस क्लस्टर है ना, वो लामड़ा फंक्शन में हो सकता है वो कॉन्फ़िगर? हम्म. हेलो. ठीक है, यू आर थिंकिंग दैट वे. यस, गुड. सो डायरेक्टली क्या होता है, इन लैम्बडा फंक्शन वी नीड टू राइट डाउन द लॉजिक. अभी लॉजिक मीन्स व्हाट? टैग बेस. सो मैंने टैग बेस ही ऑटोमेशन किया है. सो यू शुड ऐड द टैग environment equal to
लोअर, और जो भी आपको सुटेबल लगे, इन्वायरमेंट इक्वल टू डेव की वेस्टेज जो भी है, प्रोडक्शन छोड़ के, यू शुड नॉट टच प्रोडक्शन. ओके, सो ये टैग बेस्ड स्ट्रेटजीज यू शुड ऐड इन द लैम्बडा फंक्शन. नोड.js बेस्ड लिखिए, .NET बेस्ड लिखिए, या आपका पाइथन में लिखना है लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, बस कोडिंग का स्ट्रक्चर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट द मेन लॉजिक इज he should lambda function should check your EKS cluster, auto scaling, group, tag. मैं आपको दिखा देता हूँ कल, मुझे जस्ट रिमाइंड कर देना, ठीक है. ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो बनता है विद द EKS cluster, for that we need to add this tag environment equal to lower. So when we calling the lambda function, in the lambda function we are suggesting check auto scaling group tag if you find environment equal to lower, then take the further action. अभी further action में क्या होता है, when we writing the lambda function, उसमें होता है टाइम चेक करो. टाइम के बिना तो कुछ पॉसिबल नहीं ना, बिकॉज वी आर बिल्डिंग दिस टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजीज. कि रात के 10 बजे ही नहीं है, आप अभी ट्रिगर करवा रहे हो 5 बजे, तो क्या होगा, अननेसेसरी स्टॉप हो जाएगा. सो ही विल चेक फर्स्ट टाइम बेस कि टाइम मतलब वो सिस्टम टाइम जो कैलकुलेट करता है कितना हो रहा है, and we need to schedule the scheduler. I mean we need to configure the scheduler. In the Linux we configured what, bash अपना cron job, Front tab. right? हाँ, cron job, right? So in AWS cases we have a, for example this is lambda function, you can Event integrate bridge. your automation. Yes, event bridge. It's a similar to your cron. यहाँ पे आप शेड्यूल लगा दीजिए रात में 10 बजे का एंड मॉर्निंग 9 AM फॉर एग्जांपल, ये दो ही टाइम पे ट्रिगर होगा. ओके, वो किस तरह से ट्रिगर करना है आई विल शो यू लेटर, अभी मेरे पास क्लस्टर रेडी नहीं है, ठीक है. सो इस तरह से वो टाइम चेक करेगा और उस टाइम पे ही वो शेड्यूल वर्क करेगा. एक्शन में उसमें रहता है लैम्बडा फंक्शन में, आई विल शो यू. और इफ यू कैन सर्च सिंपली, इफ आई शो यू क्विकली राइट नाउ, राइट नोड.js बेस या पाइथन बेस, पाइथन 3.2 वर्जन lambda function to stop and start daily AKS cluster, check auto scaling group tag environment equal to lower, इस तरह से, ठीक है. If I show you, ये बोटो थी जो लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होती है ना पाइथन के लिए, तो वो यूज करेगा इनबिल्ट. ओके, if you are getting any issue related to package, so if you remember I teach you the lambda function, lambda layers, वो आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है. ये लेयर्स भी आई थिंक है मेरे पास, मैं अगर मेरे पास है ना तो मैं आपको ड्राइव में अपडेट कर देता हूँ. सी, अभी EC2 इंस्टेंस जो होता है EKS क्लस्टर का, वो स्टॉप नहीं कर सकते अपन. आई एम टॉकिंग अबाउट द EKS क्लस्टर. ओके, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको जीरो करना पड़ेगा. जीरो, जीरो मतलब क्या, रिमूव हो जाएगा वो क्लस्टर से, एंड 1 2 जो भी आपको ऐड करना है उतना ऐड कर दिए, तो इट विल बिकम अगेन स्पिन अप. ओके, स्पिन कर देगा. नॉर्मल EC2 इंस्टेंस जैसा नहीं है कि आपको उसको स्टॉप करेंगे नेक्स्ट दिन स्टार्ट करेंगे. इफ यू आर यूजिंग नॉर्मल EC2 इंस्टेंस जैसे कि आउट ऑफ EKS क्लस्टर, तो उसको आप स्टॉप करिए. यहाँ पे आपको उसको 0 1 करना है, मतलब 0 मतलब पूरा रिमूव कर दो. क्लस्टर नहीं, क्लस्टर आप नोड ग्रुप जो करते हैं, नोड ग्रुप के अंदर जो भी हम 1 2 जो वैल्यू ऐड करते हैं सर्वर का, वो ऐड करना है नेक्स्ट मॉर्निंग. सो मेक इट कितना आपको चाहिए, मिनिमम 2, तो मिनिमम 2 करो. अभी वो ऑटोमेटिकली होगा कैसे, आई मीन
हमने पॉड वगैरह डिप्लॉय किया था, इंग्रेस वगैरह सब बना दिया था, राइट। फिर नेक्स्ट डे जब वो सर्वर फिर से नया लॉन्च होकर ऐड होगा, तो डिप्लॉयमेंट के हमें मैनुअल करना पड़ेगा। इसमें पॉड वगैरह ऑटोमेटिकली रन कैसा होगा? आई मीन होगा या नहीं होगा? कैन एनीवन गेस? आपने EKS क्लस्टर पूरा सेटअप कर दिया, पॉड्स, आपका इंग्रेस, सर्विस वगैरह सब कुछ चल रहा है ठीक से। अभी शाम को आपने स्टॉप कर दिया, मतलब 0 कर दिया। नेक्स्ट डे आपको उसको ऐड करना है, मतलब 1 to जो भी आपका मिनिमम चाहिए वो कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ें आपने डिप्लॉय की थी कल, वो आज हो जाएगी या आपको मैनुअली फिर से करना पड़ेगा? मैन्युअली करना पड़ेगा, मतलब टैग देने पड़ेंगे ना। कौन सा टैग देना पड़ेगा? मतलब जो नोड का है वो, जो नोड ऐड करनी है उसका टैग देना पड़ेगा ना। अभी टैग देने की कोई जरूरत नहीं ना। टैग तो हम वो लैम्बडा फंक्शन के लिए दे रहे हैं, ताकि वो टैग चेक करे आपके अकाउंट में, एंड उसको टैग मिला इन्वायरमेंट इक्वल टू लोअर, तो वो स्टॉप कर देगा। स्टॉप करेगा मतलब 0 कर देगा। नेक्स्ट डे आपको कितना ऐड करना है, 1 ऐड करना है फॉर एग्जाम्पल, तो 1 ऐड कर देगा। तो टैग का काम उतना ही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द इनसाइड द क्लस्टर। जो क्लस्टर आपने कल पूरा सेटअप किया था, पॉड वगैरह सब डिप्लॉय किया था, अभी ओके। वो सर्वर 0 हो गया नोड ग्रुप से। ओके। नेक्स्ट डे वो 1 होगा, तो वो पॉड्स वगैरह ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो जाएगा या आपको मैनुअल करना पड़ेगा? ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। चलो सर, हमने अगर ये लामड़ा फंक्शन उसने ट्रिगर किया है, सब हम्म। सेटअप किया है वो स्टार्ट एंड स्टॉप का, तो हम्म। ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, बट कैसे होगा वो पूछ रहा हूँ मैं। कहाँ से होगा? लैम्बडा फंक्शन से होगा या विद इन EKS क्लस्टर होगा? लामड़ा फंक्शन से होगा ना सर। लैम्बडा मतलब फंक्शन से आपका पॉड वगैरह कैसे डिप्लॉय होगा? सी यूज केस समझ लो, थोड़ा लैम्बडा फंक्शन इज ओके। रिस्पॉन्सिबल ओनली हाँ, स्टॉप एंड ट्रिगर स्टार्ट, स्टार्ट, स्टॉप एंड हाँ। स्टार्ट सर्वर, बस खत्म हो गया उसका काम। हम्म। मैं क्लस्टर के अंदर की बात कर रहा हूँ। पॉड्स वगैरह जो आपने क्लस्टर के अंदर डिप्लॉय किए ना, EC2 ओके। इंस्टेंस के ओके। अंदर, मतलब वो नोड ग्रुप में, तो वो कैसे होगा हम्म। नेक्स्ट दिन? मतलब कौन सी सर्विस है जो रिस्पॉन्सिबल है कि वो चेक करे कि नोड आप है, आई मीन पॉड आप है कि नहीं, एंड डिप्लॉय करे उसको, अगर नहीं है तो? क्योंकि ऑलरेडी आपने EKS क्लस्टर के ब्रेन में डाल दिया ना कि भाई ये मेरा इतना 2 पॉड रन होना चाहिए, इंग्रेस है। आप वो नोड ग्रुप 0 कर दिया आपने, अभी नेक्स्ट डे आप उसको 1 कर रहे हो, मतलब एक सर्वर उसको फिर से नोड ग्रुप में ऐड हो गया। अभी वो कौन देखेगा उसको कि यार ये तो पोर्ट नहीं चल रहा है इसमें, अभी उसको पोर्ट डिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा। ये किसका काम है? हम मैनुअली तो नहीं कर सकते ना इतना सारे सर्वर पे। जो आप मान लो बहुत सारे ट्रैक्स आप संभाल रहे हो, बहुत सारे इन्वायरमेंट से लोअर लोअर वन, सब पे आप डेली बेसिस मैनुअल करोगे क्या? नहीं। EKS क्लस्टर का जो फीचर्स होता है, हमने, अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा इसका भी आर्किटेक्चर, EKS क्लस्टर का शेड्यूलर वगैरह, तो दोज आर द रिस्पॉन्सिबल ना। रिप्लिका सेट आपने कॉन्फ़िगर किया कि मिनिमम आपको 2 चाहिए, एक बार उसको नोड ग्रुप में सर्वर मिल गया तो फिर से उसको डिप्लॉय करेगा वहां पे। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, ठीक है, मैं आपके कंटेक्स्ट पे आके सर्च करता हूँ। आई हैव EKS क्लस्टर, ठीक है, वन विथ वन नोड ग्रुप, टुडे इवनिंग आई स्टॉप द EKS cluster node group, I mean I make it 0 to save the cost. I already deployed Grace service pods etc. Those are running fine. ठीक है? Now next day I added one more instance in node group. Who is responsible to deploy pods on new node? Right?
क्या आंसर मिला आपको इसमें? स्क्रीन आपके सामने है। शेड्यूलर Kubernetes responsible. हाँ, शेड्यूलर का काम ही है शेड्यूल करना। उसको नोड ग्रुप में नोड नहीं मिला तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। उसके ब्रेन में है कि आपने 2 पॉड इंस्टॉल कर दिए, मतलब डिप्लॉय कर दिए, इंग्रेस डिप्लॉय कर दिया, जो बेस लाइन है वो सब कॉन्फ़िगर्ड है। अभी उसको जहाँ पे डिप्लॉय करना है उसको कहीं लैंड चाहिए होगा ना, कि कहाँ पे उसको लैंड करना है, राइट? तो वो उसको नहीं मिला तो वो वहाँ अटके पड़ा रहेगा। वो जब भी वो कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग में रहेगा कि उसको कब मिले, कब डिप्लॉय करे। जब नेक्स्ट डे आपको आपका सर्वर अप होगा, नोड ग्रुप, उस क्लस्टर के अंदर नोड ग्रुप, तो वो फिर से उसको मिल जाएगा। जैसे ही उसको मिलेगा वो फिर से जो भी उसका ब्रेन में है वहां पे उतार देगा वो, जो जितना भी आपके पॉड्स है, इंग्रेस है, सब कुछ। मतलब वो एकेएस ऑटोमेटिक कर क्लस्टर देगा के शेड्यूलर। एकेएस क्लस्टर के मास्टर में सब कुछ भरा पड़ा है। आपने सब भर दिया कि मेरा ये इतना पॉड है, ये सब आपने डिप्लॉय कर दिया। नेक्स्ट डे मतलब इवनिंग में आपके आपने उस सर्वर को जीरो कर दिया। नोड ग्रुप जब मैं बोलता हूँ ना, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। द स्ट्रक्चर ऑफ दिस EKS क्लस्टर जो है, मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। इसमें किसी को कंफ्यूज हो रहा है क्या? नोड ग्रुप जब जब मैं बोलता हूँ, ये आपका EKS क्लस्टर है विच इज योर मास्टर सर्वर। आपके पॉड्स वगैरह इस पे डिप्लॉय नहीं होंगे। ये तो आपका मास्टर सर्वर है, आपका ब्रेन है, ठीक है, जिसमें सब कुछ भरा पड़ा है कि इंफ्रा कैसे मैनेज करना है क्लस्टर के अंदर। अभी जो आपका जहाँ पे डिप्लॉय होना है, आपका एक्चुअल पॉड, आपका सर्विस का, मॉनिटरिंग का, वो होगा नोड ग्रुप के अंदर। जो हम जब जो हमने देखा कल, राइट, क्लाउड फॉर्मेशन से लास्ट वीक में, नोड ग्रुप बनाएंगे। इसमें इसमें हम देंगे कि आपको कितना मिनिमम सर्वर रन करना है। हमने अगर 1 लिखा तो एक नोड वहां पे रन होगा। नोड मतलब आपका सर्वर, EC2 इंस्टेंस। उसको यही, उसको अगर 0 मिला तो वो अब मास्टर सर्वर डिप्लॉय कहाँ करेगा? नहीं करेगा। नेक्स्ट डे जब 0 से 1 होगा, फिर से मतलब ऐप हो जाएगा सर्वर, वो वहां पे डिटेक्ट करके ना उसको डिप्लॉय कर देगा। तो शेड्यूलर इज द रिस्पॉन्सिबल, जो मास्टर का कंपोनेंट है EKS क्लस्टर का। API सर्वर है, शेड्यूलर है, कंट्रोलर है, ETCD है। ETCD में आपका सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन रहता है क्लस्टर का। अगर आपका एक सर्वर का बैकअप, एक क्लस्टर का बैकअप दूसरे इस पे फ्रेश क्लस्टर पे आप डाल दोगे ना, EKS क्लस्टर पे, तो आपका एज इट इज वहां पे डेटा, आई मीन कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा आपको बैकअप रिस्टोर करते टाइम पे। ठीक है, दीज आर द एडिशनल पॉइंट्स। आप जब भी फ्यूचर में प्रैक्टिस करोगे तो बैकअप रिस्टोर का। बट शेड्यूलर इज द रिस्पॉन्सिबल टू शेड्यूल योर पॉड्स वगैरह। इस पे नोड ग्रुप के अंदर जो भी सर्वर बना है, जब नेक्स्ट डे 1 होगा तो शेड्यूलर वो ऑटोमेटिक डिप्लॉय कर देगा तुरंत। टाइम नहीं लेता है। दैट इज दी हाउ इट्स बेनिफिशियल फ्रॉम द कुबरनेटिस। इसीलिए तो कुबरनेटिस यूज करते हैं ना लोग। स्केलिंग आपका फास्ट हो जाएगा। उसमें आपको थोड़ा सा डेफिनेटली ट्यून करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशंस, बट इट विल हेल्प अ लॉट। मैनुअल आपका हेडेक बहुत बहुत कम है इसमें। कंट्रोलर आपका नोड ग्रुप मेंटेन रखेगा। जो उसमें अगर आपने मिनिमम 2 दिया है, अगर वो 1 हो गया तो फिर से उसको 2 कर देगा। रिप्लिका सेट, रिप्लिका सेट का काम ये है, अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन डिप्लॉयमेंट मैनिफेस्ट फाइल लिख दी 2 की, आई मीन रिप्लिका सेट में आपने 2 मेंशन कर दिया कि मेरे इतने ही पॉड रन होना चाहिए। मान लो कुछ क्रैश होता है या आप मैनुअल डिलीट करते हैं, तो वापस से वो फटाक से ना फिर से 2 पॉड आपका डिप्लॉय कर देगा। इज चेक करता रहता है। आप सिस्टम ना बैकएंड में पूरा चेक करती रहती है रियल टाइम, कुछ चेंजेस हुए क्या सिस्टम में, क्रैश हो गया, फेल हो गया, तुरंत दूसरा लॉन्च कर देगा। ओके, दिस वे यू कैन जस्ट मैनेज फॉर द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। ये थोड़ा सा हम आउट ऑफ द कंटेक्स्ट चले गए थे फॉर द स्केलिंग पार्ट, बट ठीक है। सर कॉस्ट वाइज कौन सा बेनिफिशियल रहता है? आई मीन विच एंगल यू आर आस्किंग? EC2 और कुबरनेटिस में। आपका यूज केस पे डिपेंड है ना, आपका यूज केस क्या है। आपको आपको अगर सिंगल एप्लीकेशन रन करना है, सिर्फ नॉर्मल कोई भी PHP वाला HTML पेजेस जो भी है,
तो आप ओके EKS क्लस्टर वगैरह के बाद इसमें क्यों जाओगे आप? If you have a multiple microservices to deploy and multiple things in the advanced level you want to use, you can go with the EKS cluster. सारी चीजें देखिए कि ये जो यूज केस के इस पे डिपेंड रहती है. Even why you ओके launch EC2 instance as well. अगर आपका नॉर्मल HTML पेज है, स्टैटिक पेज, so we can launch on the S3 bucket ना, क्लाउड फंड के साथ, यस राइट? वो अननेसेसरी आप लॉन्च वगैरह क्यों करोगे EC2 इंस्टेंस? यूज केस क्लियर हो गया, वही मैं बार बार कहता हूँ, यूज केस पे सारा कुछ चीजें डिपेंड रहती है, पूरा बाकी का आर्किटेक्चर. यूज केस छोटा है तो जरूरत नहीं बड़े स्केल पे सर्वर बनाने की. ओके मतलब EC2 पे चल जाएगा ऐसे ऐसे बोल रहे हैं एवन EC2 की भी जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर नॉर्मल वेबसाइट है आपकी ओके फ्रंट एंड की वगैरह, तो आप क्लाउड फंड यूज कर लो ना, S3 बकेट पे डेटा स्टोर कर दो. ओके व्हेन यू हैव अ मल्टी लेयर आर्किटेक्चर जहाँ पे डेटाबेस इन्वॉल्व है, डायनामिक वेबसाइट्स है, समथिंग काइंड ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की हो गई, ई-कॉमर्स का हो गया, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी. सी दुनिया वर्टिकल में डिवाइड है, अगर आप थोड़ा सा उस पर थोड़ा स्टडी करोगे तो. ये एयरलाइंस टिकट बुकिंग हो गया, आपका ट्रेन टिकट बुकिंग हो गया, किस में आएगा ये? होटल बुकिंग्स हो गया. ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी वर्टिकल में आ गया ना, राइट? आपका बाकी फाइनेंस रिलेटेड फिनटेक डोमेन में आ गया, मेडिकल का अलग इसमें आ गया. ये अलग अलग वर्टिकल है. तो जो यूज केस आपका किस तरह से है, वो उस तरह से आपको आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा. यूज केस आपका छोटा सा है और आप एकदम बड़ा सा घर बना रहे हो, राइट? कोई सेंस नहीं है उसका. तो मतलब नहीं ओके हम्म. मतलब क्लाइंट ऐसे एवन बोलता नहीं ना हमको ये यूज करो ये हम हमको उसको सजेशन देना पड़ता है ऐसा होता है ना अगर देखो क्या होता है ना, क्लाइंट कभी कभी नॉन टेक्निकल होता है, या ओके थोड़ा बहुत टेक्निकल भी है, तो उसको कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या क्लियर नहीं होती, तो हमें क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए. ऐसे ओके नहीं कि ऑलवेज क्लाइंट बोल रहा है हमने कर दिया हाँ में हाँ मिला के, कोई सेंस नहीं ओके बनेगा फिर. यू एज अ आर्किटेक्ट पर्सन, यू एज अ टेक्निकल पर्सन, सो उसका मीनिंग क्या हुआ, राइट? वी नीड टू ओके गिव द बेनिफिट्स ना. ओके ओके जब कोई कंपनी आपको कुछ बड़ा पैकेज ऑफर कर रही है, जो लोग करोड़ों में खेलते हैं, राइट, जो ऊपर सीनियर मैनेजर CEO वगैरह होते हैं, तो किस किस चीज का पैसा लेते हैं वो? कंपनी अच्छे से हैंडल करने के लिए ना, या थोड़ी उनको हाँ वहां बैठ के क्लस्टर बनाना है या कुछ करना है. यस 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 सो दे हैव अ डिफरेंट माइंडसेट ऑन दैट. ओके, सो ये सब चीजें हमें ध्यान रखना पड़ता है. ओके ओके एवन इंटरव्यू में भी जरूरी नहीं है कि जो सामने वाला पूछ रहा है बंदा, उसको हम वैसे ही ABCD में बात करें. जैसे अगर उसने बनाया, फॉर एग्जाम्पल कुछ बताया कि आपको एक आर्किटेक्चर मुझे दिखा के मुझे बना के दिखाओ, यू शुड आस्क क्वेश्चन ना कि किस तरह के यूज केस में डिफाइन करूँ. आप एक जनरिक वे में कोई भी दिखा दोगे 3 टायर आर्किटेक्चर वगैरह, अब आप उससे पूछिए ना पहले कि वो क्या किस एंगल में एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट? उसको क्या ओके चाहिए, उसको एडवांस लेवल पे चाहिए, सारे कुछ सर्विस इंटीग्रेट होके चाहिए, या सिंपल सा कोई आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करना है, तो वो पूछिए आप उसको, तो थोड़ा उसको भी प्रेशर उस पर पड़ेगा, उस पर कि हाँ बंदा पूछ रहा है कुछ ना कुछ, मतलब ही कैन बराबर एनालाइज कि आपने काम किया है अच्छे खासे. यस 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 नहीं तो मतलब क्या होगा ना, बहुत बार क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो एक दूसरे को समझ में नहीं आती, वो उसके हम्म ब्रेन से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और हम क्या आंसर कर रहे हैं, तो उस गलतफहमी हम्म की वजह से ना बहुत बार हमारा रिजेक्शन हो जाता है. क्लियर ओके करना यस बहुत यस जरूरी है इंटरव्यू में भी. ठीक है, वहां पे क्रॉस कोई क्वेश्चनिंग हाँ, क्रॉस क्वेश्चनिंग होनी चाहिए, ऑलवेज वी शुड आस्क द क्वेश्चन, बिकॉज यस अल्टीमेटली यस वी आर सेलिंग आवर सेल्फ ना. यस कंपनी यस यस पैकेज देगी मतलब क्या है, सेलिंग हो रही है. सेलिंग यस या हो सकता है, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ जो लास्ट, ठीक है मैं ऑफ द रिकॉर्डिंग बात करता हूँ, बट कभी कभी कुछ चीजें हमें ऐसे लगते हैं कि हमारे ब्रेन में वो थॉट बन जाता है कि हमने बता दिया, बट एक्चुअली में हम बताते ही नहीं उसको सामने वाले को, या हम जस्ट गेस कर लेते, ये एजम्पशन कर लेते कि सामने वाले को समझ में आ गया, बट वो कुछ पॉइंट हो सकता है ना कि उसको जो हम थोड़ा सा खुल के नहीं बोले उसको, जो भी चीजें हैं, तो वो बताना चाहिए वहां पे थोड़ा सा डीप में जाके. थोड़ा सा एक्स्ट्रा समराइज किए तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इंस्टेड ऑफ शॉर्ट आंसरिंग. ठीक है, रिटेंशन में रिटेंशन यूज योर नो, जैसे संदीप ने बताया इनिशियली कि लेट्स से यू आर स्टोरिंग समथिंग ऑन द S3 bucket,
एज वी सेड पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल है AWS, आई थिंक ऑल क्लाउड प्रोवाइडर का। अभी इन S3 बकेट यू हैव 100 GB डेटा स्टोरेज स्टोर्ड, और मे बी 10 GB और मोर देन दैट, उतना कॉस्ट नहीं आएगा इसका, बट लेट्स से इट्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड आफ्टर 2-3 years there is no one using of this data, it's a raw data, so why you should waste your money na unnecessary. So you can configure the S3 bucket life cycle policy. उसमें ऑप्शन होता है S3 bucket life cycle policy में, you can simply cut down your retention period, मतलब लास्ट 7 days का डेटा रखे, बाकी का डिलीट कर दें, एक्सपायर इट। नाउ यू शुड नॉट डिसाइड योर सेल्फ कितना रखना है रिटेंशन कट ऑफ, यू शुड आस्क योर आइदर आर्किटेक्ट, या फिर क्लाइंट को भी पूछ सकते हो मीटिंग में जब अपना स्टैंड अप वगैरह होता है, इन दैट यू कैन आस्क की हाउ मच डेटा वी वांट रिटेंशन में। अगर क्लाइंट बोलता है अगर कंप्लायंस डेटा है तो ठीक है, 1 साल वगैरह कुछ चलता है, अगर नहीं है वैसा कुछ कंप्लायंस डेटा, सो यू कैन जस्ट मिनिमाइज ना, 7 days डेटा काफ़ी है, कुछ रिपोर्ट वगैरह अगर देखने वाले हैं कहीं से, रिपोर्ट इंटीग्रेशन में है, डैशबोर्ड में है, 1 week चलो ठीक है, 1 महीना अगर वैसा कुछ डेटा है, बट उसके ज़्यादा कुछ मतलब ही नहीं है तो क्यों रखें। सो यू कैन कॉन्फ़िगर S3 बकेट लाइफ साइकिल पॉलिसी फॉर इट। एज्योर में थोड़ा अलग ऑप्शन हो सकता है, आई विल बाद में बता, एक बार देखना पड़ेगा मुझे उसका, आई थिंक संदीप वर्क कर चुके हो तो दे कैन एक्सप्लेन बेटर एज्योर में किस तरह का ऑप्शन होता है। AWS में तो आपको लाइफ साइकिल पॉलिसी सेट करनी होती है कि कितना चाहिए मिनिमम रिटेंशन, एंड आफ्टर दैट इट विल ऑटोमेटिकली एक्सपायर योर ऑब्जेक्ट। आर्काइवल में चाहिए तो यू कैन मूव इट टू आर्काइवल, जो कम कॉस्ट में आपको मिलेगा, अगर वैसा रिक्वायरमेंट है तो, नहीं तो उड़ा दो सीधा डेटा, क्लाइंट से कंफर्मेशन लेके, रिटर्न कंफर्मेशन लेना, ओके, वर्बली नहीं, क्योंकि एजर बहुत में भी बार सेम ही है, लाइफ साइकिल ही है, मीन्स 1 month 2 month 3 months, और उसके बाद आप दे प्रोवाइडिंग हम्म 2 tiers, मीन्स कूल टियर हॉट टियर, लाइक दैट। अच्छा हॉट अच्छा। टियर में जो रेगुलरली करंटली यूज होता है हमें लगता है वो हॉट टियर में रहता है, और कोल्ड कूल टियर में जो डेटा हम यूज नहीं करते मीन्स आर्काइव करते हैं ना, तो वो कोल्ड टियर में जाता है। फिर अगर वो हम्म उसका भी कॉस्ट कैसे लगता है, सपोज आपको वो डेटा फिर से यूज करना है जो कोल्ड टियर में गया है, ओके, तो फिर हम्म। उसका कॉस्टिंग अलग से लगता है, क्योंकि वो डेटा स्टोर करने का कॉस्टिंग कम है, बट वो फिर से फेच करने का कॉस्टिंग ज्यादा है। ज़्यादा हम्म, है, करेक्ट है। हम्म, हाँ, सो अगर मतलब ये। रिक्वायरमेंट नहीं है स्टोर करने की तो सीधा उसको सेटअप करके उड़ा दो, उससे तो उड़ा दो, हाँ। ऑटोमेटिकली वो उड़ जाएगा। So now how you can monitor the cost for a single account? So you can simply go to your account. From here you can just search billing and cost management. So you will land into this dashboard. Okay. And from here you can just get it down. You will see the costing like this. कितना utilization हो रहा है. But if you click on the bills, you will get detailed understanding. एक मिनट हाँ. ठीक है, you can see billing period यहाँ से you can select from here. Since I'm using this account from 2016, so you can see each year. Let's say मुझे बिल देखना है लास्ट मंथ का, जनवरी का. I can simply click on the January, okay, and you can see all the bill details here. अभी आपको नहीं दिख रहा है because I have a credits pending. I mean मेरे पास क्रेडिट है, so that's why it's you doesn't see any charges here. ये इनवॉइस ऐसे होके आती है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि ये पूरा वेव ऑफ हो चुका है क्रेडिट से। इफ आई गो टू पेमेंट्स, आई कैन सी पेमेंट ड्यू वगैरह, यहाँ पे पूरा ट्रांजेक्शन शो होता है। ये देखिए बिल, ये मतलब इतना बिल आया था मुझे लास्ट टाइम, बट आई गॉट वेव ऑफ, ओके।
credits. Whenever you get some credits from the AWS or any other platform, you can add here redeem करके, okay, and just apply and you will get like this. So मेरे पास अभी $267 पड़ा है credits के लिए, which will expire 7th 31st, okay, which is sufficient time I have. And बाकी you can explore the options, right? इसमें one more thing is budget. Budget is nothing but it will give you advance alarm. Let's say you have set up the budget for $2, $5, okay, because if you don't set the budget, what will happen, sometimes we launch some service and we forgot to delete it, or maybe your account got hacked, something like that, and someone triggered the millions of requests and you get charged. So if you don't have configured the budget, what will happen, your bill will generate at the end of the month and you will get surprised there कि इतना सारा बिल कैसे आ गया मुझे. So best idea is to set up the budget, right? Set up the budget to get the alerts advanced level पे. पहले ही आपको alert आ जाएगा. Let's say you set up the budget for $10. Okay, and if you set the threshold 80% 90% वगैरह, तो आपको वो $7-8 पे आपको अलर्ट भेज देगा आपके ईमेल आईडी पे कि यूर बिल इज समथिंग क्रॉसिंग. इस तरह से आपको बिल आ जाएगा, आई मीन मेल आ जाएगा, एंड सो यू कैन टेक द एक्शंस. बहुत सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ पड़ा कुछ नहीं इसमें. मंथली कॉस्ट बजट, ओके, यूज सिंप्लीफाइड टेम्पलेट एंड जस्ट सेट योर monthly budget, for example $5, on which email id you want to get the alerts, so you can configure here, for example my Gmail account, okay, like this, and just simply click on create a budget. So you will see like this, okay, मेरा बिल ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है. सो यू कैन सी द दिस काइंड ऑफ अलर्ट वगैरह. मुझे इसका मेल भी आया था जीमेल पे, ठीक है. तो इस तरह से आपको आएगा वो 85% क्रॉस हो चुका है. सो यू कैन चेक द बिल. अभी बिल कैसे चेक करना है, सो इन दैट केस गो टू बिल्स. in my case you are able to see the 00, but in your case you might get the charges वगैरह, यहाँ पे अमाउंट आएगा, okay, and in the drop down उस सर्विस के सामने ना you will see the चार्ज कि कितना आ रहा है कौन से सर्विस को, बिकॉज यू आर नॉट श्योर कि कौन सी सर्विस रनिंग है, हाउ आई कैन चेक. तो बिलिंग से आपको पता चल जाएगा. फॉर एग्जांपल क्लाउड वॉच का कुछ बिल आ रहा है तो यहाँ पे उसके आगे अमाउंट आपको दिखाई देगा. डेटा ट्रांसफर का आ रहा है, EC2 वगैरह ये केस का, तो यू विल सी हियर, ओके. सो इफ यू एक्सपांड इट, फॉर एग्जांपल दिस वन एशिया पैसिफिक, यू विल सी द चार्जेस. ठीक है, ये अंदर जाके आपको दिख रहा है चार्जेस है $10 वगैरह, बिकॉज आई यूज 443 आवर्स. So like this you can monitor the cost.